what do we have next? What we have next is Mr. Dharam Arora, who is coming live, by the way. You must have realized some of these have been pre-recorded. Now, Dharam Arora is a thespian, he's a theatre guy, and he's also a teacher. And he's an Arora from Bhawanipur in Kolkata, which therefore makes his Bengali better than mine. That's number one. Number two, he has been extremely active in the Hindi stage in Kolkata, having worked very closely with Usha Ganguly, Himmat Mai, as we call them. Dharam has been in our programs in the past. We had done a program on the Hindi theatre in Kolkata. We had done a program on Gulzar, and Dharam has been around. He has also translated that famous Bengali play Nathoboti or Nathbox from Bengali to Hindi. And he has for a while worked out of Australia, mastering the radio medium. And I kept asking him that, do you get to hear the Kukupura laugh? Because as you know, that's the signature tune of Radio Australia. And for the last 10 years or 12 years, I think he has been settled in Delhi. And he, other than theatre, he teaches in a number of B schools. So, in pure theatrical style with trumpet and flourish, let us invite Dharam Arora to the stage. And he is going to do a dramatized play reading of Sadat Hussain Manto's Toba Texing. Our Cup of Freedom curating programs literally flow it over. So here you are, Dharam. The stage is all yours. Thank you so much for waiting till 25 minutes past 1. But that's it. We are enjoying freedom. We are celebrating our freedom. Dharam, I will exit. You will enter, as in theatre term, right? Thank you so much, Sujitda. Thank you. Good evening to all the viewers, and thank you whoever is there and listening to us. So thank you for being there, and I would like to thank Kahani Kancheti and Sujitda for giving me this opportunity. And before I start, I would like to say that I will make a lot of mistakes. I may make a lot of mistakes because it's a great story, and मुझे माफ करना अगर मुझसे कोई गलती होती है इसमें. So I hope आप लोग मुझे माफ करोगे और एक छोटा सा एफर्ट आप समझ करके इसे एंजॉय करो. And obviously आप अपने feedbacks, give me your feedbacks at how it went. Okay, because this story has made me very emotional. Okay, so I'll start now. And so it's Toba Texing, Sadat Hussain Manto की कहानी. बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार को ख्याल आया कि कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए. यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में है, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए. अब मालूम नहीं ये बात सही थी या गलत थी. बहरहाल विद्वानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची स्तरों की कॉन्फ्रेंसेस हुई और आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए दिन तय हो गया. अच्छी तरह छानबीन की गई. वो मुसलमान पागल जिनके संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए. बाकी जो थे उनको सीमा पर रवाना कर दिया गया. यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल पैदा ही नहीं हुआ. जितने हिंदू सिख पागल थे सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए. उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी. एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदा जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसे बड़ी गौर फिक्र के बाद जवाब दिया, अरे हिंदुस्तान में एक जगह है जहां उस्तरे बनते हैं. ये जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया. इसी तरह एक और सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली आती ही नहीं. दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है. हिंदुस्तानी बड़े शैतानी हैं और आकड़ आकड़ फिरते हैं. एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया. कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे. उन्हें उनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ पैसे खिला करके पागलखाने में भर्ती करवा दिया था. असल में वो उन्हें फांसी के फंदे से बचाना चाहते थे.
ये कुछ कुछ तो समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता तो चलता नहीं था। पहरेदार सिपाही अनपढ़ और मूर्ख थे। उनकी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं पता चलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब ये कहाँ है, किधर है, कितना बड़ा है, ये इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। यही वजह है कि पागल खानों में जो पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था, वे असमंजस में थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसा पहले यहां रहते हुए भी तो वे हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठ करके 2 घंटे तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसलों पर भाषण देने लगा। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरो कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पे ही रहूंगा। खैर, जब उसका दौरा थोड़ा सर्द पड़ा तो धीरे धीरे नीचे उतरा और अपने हिंदू और सिख भाइयों से गले मिलकर के बहुत रोया। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर था जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग अलग बाकी एक क्यारी पर सारा दिन खामोशी से टहलता रहता था। जिस दिन ये तब्दीली जारी हुई, उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का एक जोशीला सदस्य था और दिन में कम से कम 15-16 बार नहाता था, उसने यह आदत बिल्कुल छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जिंगले पर खून खराबा ही हो जाएगा, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान वकील था जो मोहब्बत में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर में उसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हाँ, ये उस लड़की ने इसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको भूल नहीं पाया था। चुनांचे वो उन तमाम मुस्लिम और हिंदू लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि यार दिल का बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। पर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। न जाने उसे ऐसे क्यों लगता था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस चलेगी नहीं। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज तो चले गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छुप छुप कर इस मसले पर गुफ्तगू करते रहते थे कि पागल खाने में यार हमारी हैसियत क्या होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ये ब्लडी इंडियन चपाती खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसका पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान पर एक अजीबोगरीब शब्द सुनने को आते थे। ओपड़ी, गुड़गुड़ दी, एक्सती, पेत्याना, विधान दी, विमला दी, बाल, लालटेन। वह न दिन में सोता था न रात में सोता था। पहरेदारों का कहना था कि 15 बरस के अरसे में वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था, लेटा भी नहीं था। अलबन किसी दीवार के साथ टेक लगा के रखता था। हर वक्त खड़ा रहने के कारण उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी उसकी। मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि भाई क्या ख्याल है, तो बड़ी संजीदगी से जवाब देता था। ओपड़ी, गुड़गुड़ दी, एक्स दी, बेत्याना, विमला दी, बाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन
बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, टोबा टेक सिंह कहां है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो ये बताने की कोशिश करते, वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सयालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा, या पाकिस्तान फिर से हिंदुस्तान बन जाएगा। और ये भी कौन सीने पे हाथ रख के कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएंगे। उस सिख की पागल के केस छिद्र होकर थक से गए थे, पतले से हो गए थे। चूंकि वो बहुत कम नहाता था, इसलिए उसकी दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी हो गई थी। मगर आदमी निरीह सा था। 15 बरसों से उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे, वो उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में इसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक एक दिन दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसको मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर लाए और पागल खाने में भर्ती करा दिया। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पूछकर चले जाते थे। ये सिलसिला कुछ अरसे तक तो जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोपा टेक सिंह ही कहते थे। उसको यह मालूम नहीं था कि आज दिन कौन सा है, आज महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीना जब उसके संबंधी उससे मिलने के लिए आने वाले होते थे, तो पता नहीं उसे कैसे अपने आप पता चल जाता था कि वो आने वाले हैं। चुनाचे वो दफादार से कहता, आज मेरी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह से नहाता, रगड़ रगड़ कर साबुन घिसता, सिर पर तेल लगाता, कंघा करता, अपने कपड़ों जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता, यूं सज बनकर मिलने वालों के पास आता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता। कभी कभार ओपड़ी गुड़गुड़ दी, एक्स दी, पेत्याना, विमला दी, बाल ऑफ दी लालटन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ते बढ़ते 15 बरसों में जवान हो गई। बिशन सिंह उसको पहचानता नहीं था। वह बच्ची थी और अपने बाप को देखकर रोती थी। जब बड़ी हुई तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरों पागलों से पूछना शुरू किया, टोबा टेक सिंह कहां है। जब उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था तो उसकी कुरेद दिन पर दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज ही बंद सी हो गई थी, जो उसे उनके आने की खबर दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो उससे अपनी हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयां, कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता ना कि टोबा टेक सिंह कहां है, तो यकीनन वो उसे बता देते कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के अनुसार कहका लगाया और कहा न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में है, इसलिए कि मैंने तो अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत करी कि भाई हुक्म दे दो ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तो आकर वो बरस पड़ा और बोला, ऊपर दी गुड़ दी, एक्स दी बेध्याना, विमला दी बाल ऑफ, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद मतलब यह था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते ना तो तुम मेरी जरूर सुनते। तबादले के से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान दोस्त मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था।
जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन बिशन सिंह ने फजलदीन को देखा और कुछ बड़बड़ाने सा लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे मैं बहुत दिन से सोच रहा था तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, अ, फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ हाँ, वो भी ठीक ठाक है। उनके उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर और भाई बिदावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे ना, उसमें से एक ने कट्टा दिया है। दूसरी के कट्टे हुई थी, पर वो 6 दिन के होते ही मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरुंडे की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही को दे दी और फसलदीन से पूछा, तोबा टेक सिंह कहां है? तोबा टेक सिंह? फसलदीन ने बड़े हैरत से पूछा। कहां है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में। फसलदीन जरा बौखला सा गया। बिशन सिंह वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुड़ दी एक्स दी बेदयाना विमला दी बाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां भी तैयार हो गई थी। तबादले का दिन तय हो गया था। सख्त सर्दियां थी। जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां के पुलिस रक्षक दस्ते के साथ रवाना हुई, तो उनसे संबंधित अफसर भी साथ में आ गए। बागा के बॉर्डर पर दोनों सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले। आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कई तो बाहर ही नहीं निकलते थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, तो वे फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग ही था। और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की बहुमत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। चंद जो कुछ सोच रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमान और सिखों को ये नारे सुनकर के वो तैश में आ गए। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहां है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसा। पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हट गया और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तान सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तोबा टेक सिंह कहां है? ओपर दी गुड़ दी एक्स दी बेदयाना विमला दी बाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब तोबा टेक सिंह पाकिस्तान चला गया है। अगर नहीं गया ना तो चलो हम फौरन उसे वहां भेज देंगे, मगर वो ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वो बीच में एक जगह में इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत नहीं हटा सकती। आदमी चूंकि निरीह था, उससे जबरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया। बाकी काम चलता रहा।
सूरज निकलने से पहले निश्चेष्ट और अचल बिशन सिंह के हलक से आसमान को फाड़ देने वाली एक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांग पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा था। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह पड़ा था। थैंक यू। साई। Thank you, everyone. Relax, relax, Dharam. Let us also take a breath. You also take a breath. Have a glass of water. Oh, Yeah, I will. believe me. Yeah. Wow. In fact, there is one couple of comments which have come while you were reading is going to make you feel good, feel nice. It is making us feel good and nice. So it has been really very so moving. The end was so moving. We also had to pause. It was really great reading. And Dharam, I'll tell you something personally, not just tell you that thank you very much for having come for our show. But this is the finest reading of Toba Tek Singh that I have heard in my life. Believe me. Thank you. We've never heard anything like this better. And I think I've got there is Jyoti Mehra also, I think, echoing what I'm saying. Wonderful reading. Sheila Sanyal also has. We have never heard anything better than this. Very seriously. What a Thank you, wonderful sir. Thank reading. And no, Sir Dharam, this has come from within. This has come from within. And Sabir Iqbal Saab, he says that you have actually made us speechless, which is why I told you, wait, let us get our breath back. What partition we have done and what price of the freedom. I think it has Yeah. all been encapsulated by Manto and Toba Tek Singh. So Correct. that's what it has been like. Now, so what we will have to do is that thank you so much, Dharam, for taking. Thank you so much. You have taken so much trouble and continue No, to no, be a no part trouble. of this Kahani Kanchiti team. No, it is a pleasure. I think I got this opportunity and on such an auspicious day, 15th August. Actually, we have in my family, I've seen partition. And I mean, have heard a lot of stories and when you read, you actually live. When you read a story, it does. But when you read the story for 2 weeks and you try to emote, and I thought that I will read, and when I'm doing the play, I will not get so emotional. But the end is so, the way it's written. So I think, thank you to everyone who has patience and, stayed up so late. Not just written, the thing what you have done, Dharam, you have actually done so much justice to Manto. You have actually done that great justice to Manto by having read it out like that. Amazing. I mean, as I said, we have heard celebrities read Toba Tek Singh. We have read this, one act plays. But this, I think, and this will be up on YouTube. And I must tell all my viewers, those of you who are still here with us, and this is now 1:45 for the 15th of August. All this is going to be up on YouTube. Whenever you feel like wanting to listen to this show by Dharam, please go to our YouTube channel. This will be up there. So, Dharam, thank you very much for Thank you. Thank you so much. And to everybody. we are all, no, thank you. We are all completely moved. It was a pleasure listening to Dharam. More, Yes. you really excelled. So that's what is coming.